Hi students, good evening. Welcome to Pariksha Idea. In today's lecture we will see about Indian Constitution, the questions which are being asked in Indian Constitution. So this is the to make you aware about the importance of the polity in your preliminary examination at the same time the mains examination. This is something statistics which shows that how many questions are being asked in UPSC examination related to polity and the governance and the area. Friends, you see the paper of this is the paper, and paper talks about the paper is about prelims to 2021. In prelims 2021, how many questions they have asked? There are 14 questions. They have asked 14 questions from the Indian polity. Indian polity includes both the governance and at the same time the Indian constitution. The questions covered various topics of preamble and governance topics. And the questions are basically current mood questions. They are influenced by the current developments. 14 questions are asked in prelims in 2021. And if you see other like 15 sections in economics, science, 13 questions, and particularly if I'm talking about this constitution and governance, 14 questions are asked in 2021. This in the same way, if you see, like this is the statistics. If you see the difficulty level of the polity questions are easy to moderate in 2021. Easy to moderate. 14 questions are from easy to moderate in polity. At the same time, if you see in this pie diagram, polity covers 14% weightage. Polity has a weightage of 14%. It's not. The point is, if you want to perform better in the civil services examination, you cannot ignore this part. This is one of the important component of the UPSC preparation. At the same time, if you are very clear into this Indian constitution and then governance, what will happen? You will write a better essay also in the examination. So polity helps you in your general studies, at the same time in your approach to deal with the situations which will come in your even in your ordinary life. At the same time, in the interview, we are sticking to the UPSC purpose only here, and then we can move to another. Like in 2020, the how many questions are asked from polity sections? So you see from this graph that this polity in 2020 they have asked 16 questions from the polity. The questions covered areas of preamble, fundamental rights, directive principle of state policy, basic structure, and union government. So the point is, I want to make it clear to you that this is polity has a very long weightage in this UPSC preparation. So, and what sort of things you have to cover in this polity, we will discuss later on. Points scored in this, you will see through this graph that point which is scored in this is overall is 16% weightage of polity in your UPSC examination that is being asked in 2020. Okay, 2021. The same way you will see 2019, they have asked how many questions from polity? 13 questions. Meaning thereby is polity is one of the important component of your UPSC preparation. So keeping this point in mind, you have to deal with the polity part. So coming back to the Indian Constitution, the basic structure or basic things of the Indian Constitution. So what we will do is
will go into the basics of the basic framework of the Indian Constitution. Basic framework of the Indian Constitution. See, Indian Constitution is Indian Constitution. What is Constitution? Constitution is the supreme book of the land. No laws made by the country, no laws made by the legislature can overrule or surpass the provisions of the Indian Constitution. You have to follow the rule book, Indian Constitution. Supreme law of the land. This is the supreme law of the land. So, in order to make laws or in order to do anything, any course in Indian political system, so nothing can go against the Indian Constitution or the supreme book of the land. Friends, we will see how our Constitution has been made. Indian Constitution. Friends, if you will go into the making of the Indian Constitution, it took 2 years and 2 years, 11 months and 18 days. So how many days? 2 साल 11 महीने 18 दिन. इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे थ्रू डिबेट्स डिस्कशन और उनके बाद और 2 years में there were 11 session or it goes for 165 days. 11 session concluded in 165 days. 11 session के बाद ये constitution that is on the last day that is of the 11th session, that is 26th November 1949. On the last day of the 11th session, that is 26th November 1949, we the people of India, the people of India has given to ourselves this supreme book, that is Indian Constitution. So you see, the journey of the Indian Constitution, it took 2 years, 11 months and 18 days, and it takes 11 session, that is 165 days. 26 November 1949 is the date when we have enacted, adopted, and give to ourselves this Indian Constitution. Who has given this Indian Constitution? It's given by the people of India, we the people of India. And the point is, you know, B.N. Rao is the constitutional advisor of the whole constitutional advisor who was there, who guided in the making of this constitution. So important thing is, it took 2 years, 11 months, 18 days, 11 session and 165 days. On the last day of the 11th session, that is 26 November 1949, we the people of India have given this
has given this Indian Constitution to ourselves. And if you will go into the preamble of the Indian Constitution, it is given, written, enacted, adopted on 26th November 1949. Friends, one another session, that is 12, session number 12. Session number 12. It was convened. Why it was convened? In order to give, they have signed the constitution. Everything was ready and it was signed by the constitution maker on, that is 24th January 1950. That was the 12th session of this whole journey. So on 24th January 1950, the session number 12 that has been convened, where constitution has been signed and it was finally taken on 26th January 1950 under the presidency of Dr. B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar. Friends, when we made this constitution, Indian Constitution, I said it earlier that to get into the details of the Indian Constitution, we have to see the frameworks of the Indian Constitution. Framework means it will help anybody to understand the Constitution in better way. Indian Constitution has 22 parts. Now 3 more parts has been included into this Indian Constitution. But for the sake of convenience, we club into it the 3 parts into the 22 parts for the sake of convenience. The same time, we have schedule, 8 schedule. Originally, it was 8 schedule. Later on, 12 schedule has been made into Indian Constitution. We have amendments. Till now, we have 105 amendments. We have articles. Previously, in the original Constitution, we have 395 articles. 395 articles. But effectively, we have 394 articles. 394 articles. The last article was a repealed article. Today, what I will do is, I'll try to make you understand the parts of the Indian Constitution, What are the elements, what are the things that are into the parts of the Indian Constitution that will lead you to understand or realize the importance of the Constitution, and at the same time, from where the civil services examination, from where UPSC is going to ask, or it will give you a better view, a bird view to understand the Indian Constitution also. This is an Indian Constitution, but at the same time, for civil service examination, you have to read governance also. Governance and Indian polity. Indian polity. Friends, here I'll suggest you like some books. Before getting into the 22 parts, I'll suggest you some books like NCERT is from 6 to 12. This will give you a basic view of the things in that is being important for the Indian Constitution, like unity in diversity, what is the meaning of equality,
what is the meaning of justice, everything you will get from this, the preamble, the making of the constitution, everything. But the Bible for this your UPSC preparation journey will be your Lakshmikant. Lakshmikant. I know this will be a repetitive thing because you might be knowing that Lakshmikant is one of the basic and the Bible for your preparation. But from my side, I'll say this is one of the most important book you have to go through, Lakshmikant. And the same time, some sites like you can search PIB and PRS, Press Information Bureau, will get a lot of things from there. So these are the things like for books, if you want to refer some book, these are the books. Sites, you can consult this site, you can check, because that will be very advantageous for your preparation in the journey of the civil service examination. Okay, now let's come to this part. As I said you, the Indian Constitution is divided into 22 parts. 22 parts. And 22 parts plus 3 more parts are there. 3 more parts. Let's start this journey. This is a very important and basic thing for your comprehending knowledge, for your knowledge of Indian Constitution. Let's start. What are the things into all the parts? What are the things like in the first part of the Indian Constitution talks about union and its territories. Union and its territories. What are the things in union and territories? Friends, जब आप इसमें आएंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में, तो आप देखेंगे कि इवन आपको लगता, आप देखते होंगे, आपने सुना होगा कि हम कई स्टेट्स बना लेते हैं, स्टेट्स, न्यू स्टेट्स बनते हैं, स्टेट्स न्यू। जैसे कि अपने अभी थोड़े से, अगर आप थोड़ा 10 इयर्स के डाउन द लाइन देखेंगे, तो आप देखेंगे कि 3 नए स्टेट्स बने थे। 3 नए स्टेट्स में कौन कौन स्टेट थे? एक तो था उत्तराखंड, दूसरा स्टेट था छत्तीसगढ़, एंड द लास्ट वन जो बना था वो था झारखंड। तो जो जर्नी स्टेट्स कैसे बनते हैं, यूनियन और टेरिटरीज के बारे में पार्ट 1 पूरे डिटेल्स में बताता है कि स्टेट्स कैसे बनते हैं, या कोई नए स्टेट्स को अगर इंडक्ट करना हो स्टेट्स को, तो उसको उसके लिए क्या प्रोविजंस होंगे। तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये रिलेटेड टू यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, नाम इसके क्या हैं, क्या इसको अगर स्टेट मुझे बनाना है, किसी की बाउंड्री को छोटा करके दूसरे में ले जाना है, तो क्या उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता होगी, या सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं स्टेट को। तो दीज ऑल थिंग्स आर गिवन इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात करता है। फ्रेंड्स, अब आप इसमें देखेंगे कि आर्टिकल, अगर इसको देखें कितने से कितने आर्टिकल तक इसको रखा गया है, आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 इंडियन टॉक्स अबाउट व्हाट, फर्स्ट पार्ट टॉक्स अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, और उसमें आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक क्या बात डिस्कशन करता है, इस संदर्भ में यूनियन एंड टेरिटरीज कैसे स्टेट बनेंगे, न्यू स्टेट्स के लिए क्या तरीके होंगे, जो नए नए स्टेट्स उसके बाउंड्रीज क्या होंगे, इन सब चीजों के बारे में डिटेल से ये चर्चा करता है।
फिर हम चलते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट, आज मैं आपको पूरे इस पार्ट्स के बारे में जानकारी दे रहा हूं, ताकि क्या होगा कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको पहले से ये लिंक कर पाएंगे कि सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं और कोई भी चीज किस पार्ट से आ रहा है। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट किसके बारे में डिस्कशन करता है फ्रेंड्स? इट टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब, आप जब भारत, उस समय जब भारत आजाद हुआ तो एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ, जब आजाद हो उस समय में जो यहां के निवासी थे, कम एट द टाइम ऑफ commencement of the constitution, जो उस समय यहां के नागरिक थे वो यहां सिटीजनशिप रहे। पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी होके इंडिया आए थे उनका सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। इंडिया से जो पाकिस्तान गए उसके बारे में बात करता है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, उनके सिटीजनशिप की बात करता है। ये सारे डिटेल में आप सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 11 के अंदर में इसको आप फ्रेंड्स देखेंगे। व्हाट इज सेकेंड पार्ट टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11, इसमें सारे ये प्रोविजंस आपको वहां मिलेंगे। देन वी विल गो इनटू द थर्ड पार्ट, और सबसे ज्यादा इस पार्ट की चर्चा हम लोग करते हैं, पार्ट 3। Part 3 talks about the lengthiest fundamental rights. Fundamental rights क्या है? Fundamental rights are the basic rights without which nobody can have a complete personality development. उसके personality development के लिए fundamental right is similar to the human rights, लेकिन इसको एक तरह से ये fundamental right कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे इंडिविजुअल के लिए, ग्रुप के लिए दे दिया गया है ताकि वो अपने हर चीज को, जैसे रिलीजन के अधिकार को, या अगर माइनॉरिटी हैं तो एजुकेशन के अधिकार को, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने के अधिकार को, सारी चीजों को इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। और फंडामेंटल राइट इज अ नेगेटिव राइट। नेगेटिव मीन्स आपको इसमें स्टेट इज बाउंड टू गिव यू, और इन नो केस आप फंडामेंटल राइट को आप ये नहीं कर सकते, वेव कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, फंडामेंटल राइट वेव भी नहीं हो सकता, लेकिन फ्रेंड्स नो राइट इज एब्सोल्यूट। इवन फंडामेंटल राइट्स इज नॉट एब्सोल्यूट। फंडामेंटल राइट भी विथ लिमिटेशंस हैं, एंड द लिमिटेशंस इज, अदरवाइज क्या होगा, आर्बिट्ररी हो जाएगा कोई भी चीज। तो कर्ब दिस आर्बिट्ररीनेस, फंडामेंटल राइट्स आर विथ लिमिटेशंस। फंडामेंटल राइट में अगर आप देखेंगे, इसमें लेंथीएस्ट वन आर्टिकल 14 से स्टार्ट हो रहा है ये फंडामेंटल राइट। सॉरी, फंडामेंटल राइट स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल 12 और आर्टिकल 35 तक ये जाके खत्म होता है, आर्टिकल 12 to 35। लेकिन फंडामेंटल राइट में यह डेफिनेशन 12 में आ जाएगा। 13 में अगर फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट ऐसे कोई भी चीज, कोई प्रोविजंस या कोई लॉ लेके आते हैं तो दैट विल बी वॉइड एब इश्यू हो जाता है। 13 में आप जाके देखेंगे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल दोनों चीज के बारे में डिस्कशन करता है। और जुडिशियल रिव्यू, ऑन द एनविल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इफ इट इज फाउंड बाय द कोर्ट कि फंडामेंटल राइट को सरपास करके कोई ऐसा प्रोविजंस लाया गया है, देन उस समय में आर्टिकल 13 को आप रेफर कर सकते हैं। देन आर्टिकल 13 के बाद आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18, इट टॉक्स अबाउट right to equality. What it talks about? Right to equality. What is right to equality? Right to equality means equal before the law and equal protection of the laws. मतलब ये नहीं कर सकते हम, इसमें कुछ
अपवाद भी हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, फॉरेन डिग्नेटरीज हो जाते हैं। तो उन सब के लिए क्या है कि हमने क्या किया है, फंडा ये राइट टू इक्वालिटी में यहाँ पर हमने कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं। लेकिन राइट टू इक्वालिटी मीन्स कि नोबडी, कोई भी, अगर लॉ है, एक लॉ है, ये लॉ सब पर समान रूप से लगेगा, कोई किसी के लिए लॉ विल नॉट फेवर एनीबडी, रिच और पुअर, सब के लिए, सबके साथ बराबर से ये लॉ लगेगा। तो इट टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी। और इस राइट टू इक्वालिटी को अचीव करने के लिए व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन, इन हम अमेंडमेंट के द्वारा कई तरीके से हमने क्या किया, यहां पर हमने प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की थ्योरी लेके आए, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। और प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के साथ हमने क्या किया, SC ST और OBC, इन सब को हम रिजर्वेशन देते हैं। और अगर आप डिटेल में जब जाएंगे आर्टिकल 14 के अंदर में, यहां क्या कहता है कि रैशनल क्लासिफिकेशन, रैशनल क्लासिफिकेशन, क्योंकि मुद्दा उठ सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए और किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए क्यों आप एक अलग से लॉ बनाते हैं। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि उसको रैशनली क्लासिफाई कर देते हैं इस ग्रुप को, कि हम ऐसे ग्रुप के साथ ऐसा ऐसा एट्रोसिटीज हुआ है या वंचना हुआ है या उनके साथ एज ओल्ड एट्रोसिटीज या ये इन तरह के चीज हुए हैं, तो उनके लिए हम रैशनल क्लासिफिकेशन कर देंगे। और क्या बना देंगे, रैशनल क्लासिफिकेशन के बाद उनके लिए अलग से प्रोविजंस बना सकते हैं। आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट दिस। द सेम वे आर्टिकल्स 14 and then article 15, these are into the parts of the Indian Constitution. I am dealing the parts of the Indian Constitution, parts. अब आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। आर्टिकल 15, 16 टॉक्स अबाउट किसी भी रूप में सेक्स, एज, प्लेस ऑफ बर्थ, इन रेसिडेंस, इन सब में कोई भी आप कभी भी किसी भी तरीके से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। यहाँ पब्लिक अपॉर्चुनिटी भी आ जाती है। 17 टॉक्स अबाउट एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, अनटचेबिलिटी। 18 कि आप कोई भी राजा महाराजा वाला टाइटल नहीं ले सकते, क्योंकि टाइटल अगर आप अलग ले लेंगे, सर जैसे पहले इस्तेमाल होता था ब्रिटिश के समय में, अगर कुछ काम किया उसमें सर दे दिया था, नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी, तो ये अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि दैट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इसीलिए टाइटल। लेकिन अगर डॉक्टर लिखते हैं तो ये प्रोफेशन से रिलेटेड है, एडवोकेट लिखते हैं तो ये प्रोफेशन से रिलेटेड है, इंजीनियर लिखते हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन तब होगा जब राजा महाराजा वाली उपाधि आप लेंगे, तो टाइटल को एबोलिश किया गया। तो यू सी क्या हो रहा है कि आर्टिकल 14 to 18 टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी। फिर आर्टिकल 19, इसी में पार्ट 3 में आर्टिकल 19 अगर देखेंगे तो आर्टिकल 19 क्या करता है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम। और इसी से आपको निकल के आया प्रेस के राइट, प्रेस राइट, जिसमें कि आप एक्सप्रेस भी कर सकते हैं, साथ में आप बुक भी लिख सकते हैं। ये सारे चीज आर्टिकल 19 में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, ठीक है। और इसके साथ आप कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पीसफुल प्रोसेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देयर इज नो, आपके पे कोई रोक नहीं है। लेकिन देयर इज लिमिटेशन, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोसेशन में करते हैं विद आर्म्स, तो फिर वो क्या होता है, पब्लिक ऑर्डर या पीस को डिस्टर्ब कर सकता है, तो लिमिटेशंस के साथ वो रहेगा आर्टिकल 19। एट द सेम टाइम आर्टिकल 20 अगर आप देखें, आर्टिकल 20 कहता है कि अगर मान लेते हैं किसी भी मैटर में, और किसी मैटर में आपने क्या किया कि आपको कस्टडी लेनी है किसी को, अगर पुलिस ने कोई ऐसा किया है जिसमें कि पुलिस कस्टडी लेगी विदाउट वारंट, तो उस समय आपकी क्या सेफ्टी रहती है, कैसे आपको प्रोटेक्ट किया जाता है। यहां पर आप देखेंगे आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 20 में कहता है कि आप क्या करेंगे
कि डबल जियोपार्डी, एक गुनाह के लिए 4 बार आप सजा नहीं देंगे, एक ही बार सजा देंगे। नोबडी कैन फोर्स एक्यूज, जो भी एक्यूज्ड है, जो भी वहां पर जिसके नाम पे एफआईआर दर्ज है, उसको कोई सेल्फ इंक्रिमिनेटरी व्हाट डज दिस मीन? सेल्फ इंक्रिमिनेटरी मतलब अपने खिलाफ ही आप गवाही दें, ऐसा आप फोर्स नहीं कर सकते। सेल्फ इंक्रिमिनेटरी चीजें आप ऐसे कोई भी फोर्सफुली वो चीज नहीं किया सकता है। और आपको ये बता दूं, ये वाला क्वेश्चन जो है डबल जियोपार्डी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अभी इस बार के 2023 यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन प्री में पूछा गया। आर्टिकल 20 आप ये देख रहे होंगे। अब आर्टिकल 20 के बाद साथ में आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 किस चीज के लिए बात करता है? आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है। और दिस इज, जहां कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है, यहां पर दिस गिव्स एन एम्बिट पावर टू द जुडिशियरी टू मेक लॉज। और जुडिशियरी ने इस पे कई लॉ बनाए, जैसे कि आपका राइट टू हैव प्राइवेसी, कहीं पर भी आप पीसफुल राइट टू मूव। आपको याद होगा कि फेमस केस मनेका गांधी केस, ये किस चीज के लिए था? आर्टिकल 21 को पूरा एक्सप्लेन किया गया इसमें। और जुडिशियरी ने इस आर्टिकल 21 को इतना एम्पलीफाई किया कि ये एक तरह से, और दूसरी बात, आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी सूरत में आप इसको वेव ऑफ, या इवन जब इमरजेंसी प्रोविजंस होगा, इमरजेंसी होगा देश में, तो पर भी आप कर्टेल नहीं कर सकते। तो these all are article 21 gets back to article 21 हो गया। उसी तरह article 22 हो जाता है उसमें कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो उसमें क्या क्या आपके राइट्स होंगे। ये हो गया article 22। एंड देन विल गो टू, अब 22 तक हमने कर लिया, उसके बाद आप और इस तरह से आप जाएंगे 22 के बाद 23-24, उसमें क्या होता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये क्या है? कौन सा है आर्टिकल? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23। मतलब आप बेगारी नहीं करा सकते, बंधुआ काम नहीं करा सकते। और इस आर्टिकल 23 में एक्सप्लेन किया गया। आर्टिकल द सेम वे आर्टिकल 24 टॉक्स अबाउट चाइल्ड लेबर एबोलिशन, कि आप चाइल्ड लेबर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो वी आर सीइंग कि हम अगर पार्ट को समझ रहे हैं, अगर पार्ट 3 के पार्ट को, इतना लेंदी ये पार्ट है, आर्टिकल फ्रॉम पार्ट 3 कहां से स्टार्ट हो रहा है? फंडामेंटल राइट है, और फंडामेंटल राइट स्टार्ट कहां से हो रहा है? फ्रॉम 12 to 35। और इसी तरह से आप जाते रहेंगे। 24 हो गया, फिर आप 25 से लेके 28 तक रिलीजियस राइट आपको दिया हुआ है। यू प्रोफेस योर रिलीजन, यू प्रैक्टिस योर रिलीजन, लेकिन एट नो कॉस्ट आप किसी के धर्म को परिवर्तन नहीं कर सकते। ये चीज इसमें प्रोविजंस बने हुए हैं 25 to 28। एंड द सेम टाइम 29 and 30 टॉक्स अबाउट माइनॉरिटी के क्या राइट्स हैं। माइनॉरिटी, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी के राइट्स वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और
माइनॉरिटी किस किस तरह के हैं? रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये आप देख रहे होंगे। तो वी हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग्स इन दिस पार्ट। अब पार्ट 3 में ही अगर देखें, पार्ट 3 वी आर डीलिंग विद पार्ट 3 में अगर हम 30 तक चले गए, 32 इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बोला? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास रिट जारी किया जाता है और एपेक्स कोर्ट, रिट एपेक्स कोर्ट प्लस हाई कोर्ट हैज द राइट, और वो उसके पास अधिकार है कि अब कोई भी अगर एपेक्स कोर्ट को लगता है कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है तो उस केस में रिट आप जारी कर सकते हैं। आपको पता होगा कि हैबियस कॉर्पस और इस तरह के कई जो आपके हैबियस कॉर्पस हो गया, उसके बाद मैंडमस हो गया, उसका सर्टियरी हो गया, पो वारंटो, प्रोहिबिशन, ऑल रिट्स आर बीइंग, एपेक्स कोर्ट के पास ये अधिकार है। अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो देन आप क्या कर सकते हैं? फंडामेंटल राइट के वायलेशन से रिट जारी करके ये चीज पूछ सकते हैं ऑन व्हाट बिहाफ, किस तरीके से, क्या लीगैलिटी है जो किसी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है। तो ये चीजें हैं। हाई कोर्ट के पास एक एक्स्ट्रा पावर हो जाता है कि यहां तो फंडामेंटल राइट के साथ अगर लीगल राइट भी वायलेट हो रहा है, लीगल राइट, इसके वायलेशन के लिए भी 226 के अंदर, आर्टिकल 226 के अंदर ये क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है। तो जब आप देखेंगे, जब आप लेटर ऑन वी विल डिस्कस कि हाई कोर्ट के पास इतना ज्यादा पावर है अपने क्षेत्र में, अपने टेरिटोरियल लिमिट में, वो कोई भी लीगल राइट का भी वायलेशन होता है तो उसमें रिट जारी कर सकता है। दिस इज द पार्ट 3 और 35 तक जाता है पार्ट 3। फिर पार्ट 4 टॉक्स अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, I hope you people are getting things। जो मैं कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे होंगे कि अगर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को आप समझ लेते हैं तो आपके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना आसान होगा। और साथ में जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इजी होगा कॉम्प्रिहेंड करना कि उनमें क्या क्या चीज है अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं। पार्ट 4 टॉक्स अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, DPST। और पार्ट 4 जो है फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51, आर्टिकल 36 more। What is directive principle? Directive principle is a direction to the state और गवर्नमेंट कि कैसे आप गवर्न करें, हाउ टू गवर्न, इसकी बात करते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं कि कोई भी इसमें जब आप आर्टिकल में डिटेल्स में देखेंगे 36 और इन सब चीजों में, तो कैसे हम लोगों के जो सोशल ऑर्डर को मेंटेन कर सके, कैसे उनके इकोनॉमिक जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, उनके एजुकेशन के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, अगर आप देखेंगे इन्वायरमेंट के लिए इसमें चर्चा होती है। उसमें ये होता है कि अगर इंटॉक्सिकेशन जो शराब और इन सब में कितने नुकसान है, क्योंकि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है गांधीयन फिलॉसफी पे भी बेस्ड है। गांधीयन फिलॉसफी एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, ये सारे चीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आते हैं। एंड पार्ट 4 हो गया, टिल 51 तक ये आर्टिकल पार्ट 4 जाता है। फिर पार्ट 4 के बाद पार्ट 4 इज डिवाइडेड इनटू, मैंने बताया कि चीजें को जोड़ा गया है। पार्ट 4 में ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है और पार्ट 4
पार्ट 4 में 4A कर दिया गया है। और ये क्या है पार्ट 4A? इट टॉक्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। आपका क्या फंडामेंटल, इवन द सिटीजन्स, वी डोंट हैव द रिस्पॉन्स राइट्स ओनली, वी मस्ट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। दिस नेशन, ये जो हमें जो मिला है, दिस फ्रीडम इज नॉट इतनी आसानी से नहीं मिला, वी हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट। तो हमें इस चीज़ों को, अपने जो सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं, हमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो हैं, चीज़ों को कैसे बेहतर बना सके, इसके लिए भी एक हमारी ड्यूटी होनी चाहिए। तो आपको पता ही होगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो लाया गया, इसमें आर्टिकल 51A एक ही आर्टिकल है, और इसमें पहले 10 सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड थे, लेकिन अब लेटर ऑन आफ्टर 86th अमेंडमेंट एक्ट, 86th अमेंडमेंट एक्ट, हमने क्या किया, एक और आर्टिकल, इसमें एक और सब्जेक्ट इंक्लूड किया। आर्टिकल एक ही है, आर्टिकल 51A पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। इसमें 10 सब्जेक्ट्स था, अभी एक और जोड़ा गया, अब ये सब्जेक्ट्स की संख्या हो गई 11। ये क्या था? 86 अमेंडमेंट, यू रिमेंबर, इसमें एक ड्यूटी दे दिया गया, ये ओनस ऑन द पेरेंट्स एंड द गार्जियंस, कि जो उनके बच्चे हैं उनको आप अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो पढ़ सके। 6 to 14 ईयर्स के एज तक के बच्चों को आप पढ़ा सके। आपको याद हो कि 21 के साथ एक ए भी लगाया गया है, जिसमें ये दिया गया है कि उनके पास, उनका जो चाइल्ड है 6 to 14 ईयर्स, उनके पास ये एक तरह से फंडामेंटल राइट होगा, उनका अधिकार होगा शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। तो यू सी दिस 18, ये हो गया आपका पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज द सेम वे वी कैन, पार्ट 4A कर लिया हमने। अब पार्ट 4A के बाद विल डिस्कस पार्ट 5। पार्ट 5 टॉक्स अबाउट द यूनियन। यूनियन, और ये यूनियन क्या है? ये यूनियन में आप क्या क्या चीज देखेंगे पार्ट 5 में? यूनियन में आप देखते हैं एग्जीक्यूटिव, इट टॉक्स अबाउट एग्जीक्यूटिव पार्ट 5 में। एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आप देखेंगे? इसमें एग्जीक्यूटिव में देखें, आज पार्ट 5 को अगर आप देखें तो आर्टिकल कहां से कहां तक स्टार्ट होता है पार्ट 5 का? इट स्टार्ट्स फ्रॉम आर्टिकल 52 टू 100, let me see, part 151। ये इतने आर्टिकल्स इसमें आते हैं। यूनियन में क्या आप देखेंगे? एग्जीक्यूटिव कौन कौन है इसमें? आप ये देख सकते हैं, प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट की डिस्कशन यहां पर चलेगी। एग्जीक्यूटिव यूनियन में आप इसमें देखेंगे, और जो आपके और ये होते हैं कॉम्प्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल हो जाएंगे। इसमें अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे। यहाँ पर हम पार्लियामेंट का डिस्कशन करते हैं, पार्लियामेंट की बात हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट है उसका लेजिस्लेटिव पावर क्या है, लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शन ऑफ किसका? द प्रेसिडेंट। ये टॉक्स अबाउट यूनियन में ये चीज चला आता है। प्लस यहाँ पर सारे कॉम्प्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल। फिर आप यूनियन में अब जाएंगे और क्या आता है आपकी? यूनियन जुडिशरी, यूनियन जुडिशरी। एंड यूनियन जुडिशरी क्या है? इसमें यू विल सी द रोल, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट के पावर क्या है, सुप्रीम कोर्ट में कैसे कैसे चीजें होंगी, क्या 143 आर्टिकल 140 देखेंगे, 43 देखेंगे, इसके क्या क्या अधिकार हैं, ये सारे चीज आप जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उनमें इन चीजों को आप देखेंगे। पार्ट 5 इंक्लूड्स ऑल दिस थिंग्स। And then we will see, I think today's time is up for today. We will continue from this part 5
and we will continue from the next session. In the next session we'll continue from part 6, so that you will understand कि कैसे आखिर इस पूरे पार्ट में क्या क्या चीज है 22 पार्ट्स में. So for today's lecture, thank you.